episode of Chatbot. I'm your host when the actual host is absent. My name is Amna Clark, and today we have a guest that is actually from our education industry, and we actually really appraise him for so many reasons. But before I jump into all of these things, I would like our guest, Mr. Shehzad Sarfraz, director of Fast University, to give his short introduction himself. Welcome, sir. जी, अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much जी. And it's honor for me to be here to record this session. So कुछ introduction तो आपने already बता दिया. Dr. Shahzad Sarfraz जी, working as a director FAST National University, Chinnot Faisalabad campus, and basically I am a teacher and professor of computer science. Perfect, Zabardast. So you have mentioned that you are a teacher as well. So I am assuming that this journey was transitioned from a professor to a director, right? Yes. So, would you like to give us a short brief into ACTAS as well, like from where you have started and how this journey was, prolonged? Actually, still I am a teacher. I'm Right. teaching two courses at university, so this is the additional responsibility to be administration. Basically, I started my career from a village, you can say, not a career, early education from a village, and then I came to Faisalabad in 90s, and then I did my higher education from government high school, government Crescent Model High School, Right. and it's very near from your Yes. workplace. And after that, I did my FSC from Government Science College, Samnabad, and then I did my bachelor's in computer science from University of Punjab and with the affiliated college of Faisalabad College of Science. And later on, did my master's from University of Agriculture, and then I joined ComSets University as a lecturer in 2006. And after that, I got the chance to get a scholarship from through Higher Education Pakistan, and then I did my master's and PhD from Asian Institute of Technology from Thailand, and then I had a chance to visit National Institute of Informatics in Tokyo, Japan, and I spent few time there, and then I came back, and then I start serving uh, in ComSets, and then I joined FAST, and I spent few years, I think around 3.5 year in University of Gujarat as well, the pure public sector university. So Alhamdulillah, I had a chance to work with pure government organization and a private organization, and as well as in the semi government organization. And similarly, I traveled from Australia to America, so in between many countries. So this is a little background Right. Very about myself. impressive. You have an international exposure, and I'm guessing it's all in computer sciences, right? Like your background is in computer science. Yes, my background was Okay. computer science, but then again, I worked on the applications of computer science, like geographical information and different other application in terms of mapping and remote sensing as well. Right. So you have been working in this industry as well. Why you chose to be in academia, to work with organizations? Actually, basically, as I belongs to the lower middle class at that stage, you can say. But Alhamdulillah, now due to education, my family has been settled down, and all the setup has been changed. But at that time, to get a education or to give education from my family to the children was a difficult challenge. Yeah. So at And that time, I used to teach the tuitions. I joined different type of academies to earn some money during my education to fulfill the fees and all the other expenditure. So this create a new wave, or you can yeah. say the mission.
एंड आवर डायरेक्टर जस्ट रिमाइंडेड अस कि ये जो चैटबोर्ड है ये हमारे जिस तरह की ऑडियंस के लिए जा रहा है हमें उर्दू को यूज़ करना है। हम्म, सो लेट्स गेट बैक टू उर्दू। अम, बिल्कुल एक ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जब हम अर्ली स्ट्रगल के अंदर जो एक प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें अभी भी फॉर इंस्टेंस बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो वो पार्ट टाइम इनकम के लिए ट्यूशंस को ही चूज़ करते हैं जी। एग्जाम एकेडमीज़ के अंदर और या वन वन ट्यूशंस के अंदर। जिस तरह से भी कुछ लोगों के अंदर ये एक तरह से एक सेंसिटिव पॉइंट क्रिएट कर देता है कि हमें इस एजुकेशन को जो हम खुद ले रहे हैं हमें लोगों के तक पहुंचाना है ताकि वो भी अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रूम कर सकें या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। तो आई वाज अ टीचर एट सम पॉइंट डेफिनेटली। और टेक्नोलैंग्स में भी मैंने टेक्नोलैंग से पहले भी एज अ टेक्निकल ट्रेनर मैंने तकरीबन 5 साल तक पढ़ाया। तो आई डू अंडरस्टैंड कि एक इंस्पिरेशन होती है एकेडमिया को ज्वाइन करने की। सो लेट्स गेट बैक टू योर करंट हम यूनिवर्सिटी। ना, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि या बेसिकली जो टीचिंग है, ये टू अर्न समथिंग उसके जी लिए जी क्रिएट किया गया था। Nowadays the youth has many opportunities to do बिल्कुल। something. अब तो आपके सामने freelancing है, हम्म। and you have the internet access and you can connect, or you can find the opportunities from the whole world. राइट। हमारे दौर में तो जब मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज द 99 और उस टाइम इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं था। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो आई स्टिल रिमेंबर डी ग्राउंड में एक दो ऑफिस होते थे और हम जो है वो इंटरनेट कैफे। इंटरनेट का कैफ़े भी लिमिटेड से थे, बट पीटीसीएल की कॉल के थ्रू, कार्ड के थ्रू आप 1000 रुपीज़ उस टाइम अच्छा। जमा करवाते थे और फिर एक इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको एक कॉल चार्जेस पड़ते थे जितनी दफ़ा कनेक्शन हो रहा है। और अगेन कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं थे घरों के अंदर। तो ये मैं अगेन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। बट डेफिनेटली जो अपर क्लास उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी, उनके पास तो एक विजन था और एक अपॉर्चुनिटीज़ थी कि अपने बच्चों को वो डिफरेंट वे से ग्रूम कर सकें। बट आई एम टॉकिंग कि 99 में ऐसे वालदैन जो कि इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हैं और गांव से जिनका तल्लक रखता जी। है और उनके बच्चों को सर्वाइवल की तरफ आना, इट वाज अ चैलेंज। तो डेफिनेटली। फिर मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और देन अगेन अगेन सीनियर्स के साथ मिलके काम करने का मौका मिला, एंड अल्लाह ताला ने फिर हाथ पकड़ते गए और आगे सिलसिला चलता गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और 99 की जो आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे ज़्यादा फोकस होता था डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बिल्कुल। के ऊपर। कंप्यूटर आई डोंट थिंक सो कि कंप्यूटर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे पेरेंट्स अवेयर थे कि इसके बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला फ्यूचर। है या क्या स्कोप होगा। एंड इट रिमाइंड्स मी कि 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ है। तो 2006 के अंदर जो है वो आप ऑलरेडी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर थे। इम्प्रेसिव। तो फास्ट यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी बात करते हैं। अभी जो करंट यूनिवर्सिटी है अ, बहुत ज़्यादा फोकस है ऑन ग्रेजुएट्स और एक जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होता है इंडस्ट्री में। जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोग हैं, हम इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं तो कुछ पेन पॉइंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर और ये पेन पॉइंट्स जो हैं वो ये डायरेक्टली रेलेवेंट हैं टू एकेडेमिया। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट। बहुत मैं किसी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली टारगेट नहीं करना चाहूँगी बट हम जब ट्रेंड्स की बात करते हैं और हमारी जनरेशन की बात करते हैं तो आपने अर्निंग सोर्सेज की बात की है जिसमें आफ्टर कोविड या बिटवीन कोविड एक जो इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा बूम लिया था दैट वाज कंटेंट क्रिएशन। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी जो यंग जनरेशन है वो उस कंटेंट क्रिएशन को एक नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर लेके जा चुकी है। और आई हैव सीन सम यूनिवर्सिटीज़ जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन पे फोकस ज़्यादा होने की बजाय उसके स्टूडेंट्स का फोकस टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स इन सब चीज़ों की तरफ है एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेटिव कंटेंट। वो जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आई वुड लाइक टू से कि वो डायरेक्टली
एक नेगेटिव इम्प्रेशन है हमारी सोसाइटी का भी और नेक्स्ट जनरेशन का भी। आई डोंट नो कि उनके इन फ्यूचर अर्निंग मीन्स क्या होने वाले हैं। सो अगर हम फास्ट की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी? बिकॉज आप टॉप लेवल के ऊपर जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रेक्टर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, आप लोग एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं टू द जनरेशन, टू द ग्रेजुएट्स, और वो उस डायरेक्शन को फॉलो करके नेक्स्ट जो है अडॉप्ट करेंगे डेफिनेटली। तो व्हाट इज़ द करंट विजन ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी दैट आवर ग्रेजुएट ऑफ 2023 should be able to achieve this? अच्छा, पहली बात तो मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी-सी बात कर लूँ विदाउट मेंशनिंग द नेम। दे हैव आल्सो वेरी पोटेंशियल स्टूडेंट्स एंड Definitely. पोटेंशियल यूथ। सो आई थिंक द मेन रीज़न इज़ द गाइडेंस एंड द रिसोर्सेज़। अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। और अगेन मेरी क्योंकि अक्सर डिस्कशन होती है अपने कोलीग्स के साथ, पीयर्स के साथ, दे हैव आल्सो वेरी इंटेलिजेंट फैकल्टी मेंबर्स इन द यूनिवर्सिटीज़। Definitely. लेकिन जब रिसोर्सेज की बात आती है तो फिर वहाँ पे आके और जो माहौल की बात आती है, एनवायरनमेंट की बात आती है, तो उस टाइम दे फेल टू डिलीवर, दे प्रोवाइड द फुल इन फुल कैपेसिटी जो वो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे होते। तो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न। उसमें रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, और अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। Resources like? रिसोर्सेज लाइक इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, इन टर्म ऑफ लॉजिस्टिक रिसोर्सेज हो सकते हैं, और इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं सम टाइम, क्योंकि जब मैं उस कल्चर का पार्ट बन जाता हूँ Hmm. और फिर मुझे होता है कि अच्छा भई अब रिटायरमेंट लाइफ है, पेंशन लाइफ है, और जिसे मैं कहते होते हैं कि पक्की नौकरी वाला कंसेप्ट है, तो सम टाइम वो भी चीज़ें एलिमेंट होते हैं। Definitely. और लेकिन जो फास्ट की बात करें तो बिकॉज़ इट्स अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, और हम तो ये कहते हैं कि हमारी रोज़ी-रोटी जो है वो भी टोटली स्टूडेंट्स पे और हमारे इन्हीं पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही होती ऑन है। किया जाता है अपने ऑन किया स्टूडेंट्स को। जाता है अपने डेफिनेट स्टूडेंट्स को, और अगेन उनके लिए जो है वो प्लेटफ़ॉर्म और अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। बाकी जो विज़न है वो हमारा हमेशा यही रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हुँ, क्योंकि वी टोटली बिलीव ऑन क्वालिटी, और हम मेरिट की वायलेशन नहीं करते। और आज हम जिस मकाम पे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ मेरिट एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एंड देन जो हमारा विजन है ये ट्रांसलेट होता है, कन्वर्ट होता है आफ्टर गेटिंग द ओपिनियन फ्रॉम आवर एलुमनाई, जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में बैठे होते हैं। वी सिट टुगेदर, वी डिस्कस्ड कि आप क्या समझते हैं कि हमारे में फ्लॉज क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन वी शुड मूव, और आई थिंक दैट इज़ अ बिग स्पोर्ट। और सिमिलरली वी टेक ऑन बोर्ड टू द इंडस्ट्री। हम जितने भी कोई अगर लेट्स सी करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड है। हम उनसे इनपुट लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब आगे इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, क्या कुछ करना चाहिए। हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉइंट एफआईपीज प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट मतलब उसमें रिसर्च जी, है, जी। आर&डी है। तो हम इन लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं, तो उसी हिसाब से जो है वो फिर हम वेल अवेयर होते हैं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और क्या करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर हमें कोई एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स करवानी चाहिए, पड़ें, और लोगों को अगर हमें बुला के अपने बच्चों की ग्रूमिंग करवानी चाहिए पड़े, तो हम ये स्टेप्स करते रहते हैं। तो सो आई थिंक दिस इज़ द मेन थिंग। और फिर दूसरी बात ये है कि रिसोर्सेज़ की भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई नहीं है, क्योंकि फ़ास्ट एक जो अदारा है, ये वाहद प्राइवेट अदारा है जिसका ओनर कोई नहीं है। हुँ, तो जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ पे फैकल्टी है, दे ऑल आर द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। राइट। और वी लिव लाइक अ फैमिली मेंबर, और हम एक आई उसी हैव तरह सीन से इट। उसी तरह से जो है वो हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट एक्सटेंड करते हैं। फिर बच्चों की बात जो है वो हम केयरफुली सुनते हैं, देखते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनकी ग्रूमिंग के लिए व्हाट एवर स्टेप्स कैन बी टेकन वो हम लेते हैं। बिल्कुल ठीक। आपने स्टार्ट में एक बात की रिगार्डिंग द रिसोर्सेज़। आई माइट नॉट एग्री विद इट। द रीज़न इज़ बिकॉज़ आई हैव बीन
थ्रू ऑल ऑफ दिस, और मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, मैंने जिस यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और मैंने वहाँ पे देखा है कि रिसोर्सेज का लैक वहाँ पे नहीं है। उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे होती है, डेफिनेटली उसका एक लैक है। फैकल्टी की भी अगर बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फैकल्टी वहाँ पे मौजूद है। बट शायद इसमें एक चीज़ ये है कि इट्स अ टू वे प्रोसेस। अगर फैकल्टी अच्छी है तो आपके स्टूडेंट्स को भी अच्छा होना है। आपके स्टूडेंट्स, अक्सर ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में वो स्टूडेंट्स चाहते हैं जिनका कहीं पे एडमिशन नहीं होता। शायद आपने ये सुना भी हो इस चीज़ को, या फिर मैं अगेन सॉरी जी, जी। आपको कट कर रहा जी, जी। हूँ। आई थिंक ये इस तरह नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ देखें और कॉलेजेस को देखें तो आज भी जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हुँ, हुँ। उनके पेरेंट्स का ये होता है कि हमने गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना जी, है। बट उसमें एक औ फैक्टर और आता है, दैट इज़ रिगार्डिंग द फ़ी ऑफ दैट डिग्री। वो भी एक इंटेलेक्चुअल बच्चा जो कि जैसे अगर मैं आपकी एग्ज़ाम्पल लूँ, आपके अंदर पोटेंशियल था, आपके अंदर पेन था दैट यू नीड टू लर्न, यू नीड टू गो इनटू इंडस्ट्री और आपको काम करना है, बट आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर है, राइट? अ, इसी तरह से अगर मैं अभी एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो डज़न्ट मैटर उनके बच्चे के बोर्ड में कितने मार्क्स आए हैं, वो ये प्रेफर करेंगे कि दे हैव टू गो टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बिकॉज़ वहाँ पे उनकी फ़ीस प्रेफरेबली कम होगी। फिर फीस भी है और एक मिथ भी होती है ना कि जी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है उसकी डिग्री जो है वो रिकग्नाइज़ होती है। या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पैसे कमाती हैं। हुँ, ये भी एक इम्प्रेशन होता है। लेकिन एंड इट अगेन हैपेंस एज़ वेल। और अगेन सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी नहीं। मैंने बताया ना कि जो फास्ट है ये एक डिफरेंट मॉडल के तहत यूनिवर्सिटी बनी हुई है और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसको जो है इस पे ख़ास करम है, इस पे ख़ास एक जी, बट इसी मॉडल के साथ मैं अगेन उस चीज़ की भी बात करूँगी कि फ़ास्ट के अंदर अभी जो स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द elite class of Faisalabad, Lahore, Chinnor, और बिकॉज वी हैव बीन देयर इन द फैसलाबाद कैंपस, तो हमें पता है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉस्टलाइज हैं, बहुत दूर दूर के एरिया से आके रहते हैं। तो देर इज़ अ फैक्टर दैट रिमेन्स सेम। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं या कोई भी मिडिल क्लास से एडमिशन लेने का सोचे आफ्टर देयर इंटरमीडिएट, तो वो इंटरमीडिएट ऑब्वियसली मेरी जो टॉप लिस्ट होगी दैट इज़ गोइंग टू बी द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, वहाँ पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ करिकुलम पे बात नहीं की जाती। आपने बात की है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन के ऊपर भी बात की है। और हमने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे भी हैं जिसके ऊपर फास्ट एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को ऑन करती है। बहुत सारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अपने स्टूडेंट्स को ऑन करती हैं। वो आफ्टर ग्रेजुएशन अपने स्टूडेंट को अकेला नहीं छोड़ते हैं कि भाई जाओ जाके अपने लिए जॉब ढूंढो। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और डीप कनेक्शन है हर स्टूडेंट का अपनी यूनिवर्सिटी के साथ। बट फैक्ट रिमेन्स द सेम कि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट फास्ट में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता अगर वो किसी तरह से स्कॉलरशिप पे नहीं आ जाता। तो वहाँ पे उस स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मैं यही बात बता रहा हूँ कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास कोई बच्चा ऐसा है जो एडमिशन ले लेता है और वो डिज़र्व करता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस लेवल की नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हुँ, तो हुँ। हम उसकी 100% फ़ी जो है वो वेव कर देते हैं। और हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, हंड्रेड्स केसेस हैं। हुँ, हुँ। इस साल के बजट में भी जो है वो इस हमारे सिर्फ एक कैंपस का जो बजट था वो तकरीबन 7 करोड़ रुपया था, जो कि हमने बच्चों की फ़ीस की बद में जो है वो उनको माफ़ किया आप कह लें, या फाइनेंशियल असिस्टेंस की फॉर्म में जो है हमने उन्हें दिया है। आपने दानिश स्कूल के बच्चों का सुना होगा, जी, जी। राजनपुर, रहीम यार खान, इस एरिया के बच्चे हैं। हमने उन बच्चों की 100% फ़ीस माफ़ की और अराउंड 50 बच्चे जो हैं वो हमने इस करंट ईयर में जो है उनको इनरोल किया। बिसाइड फ़ी हमने उनको अपने कैंपस में हॉस्टल की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की। और फिर इसके अलावा हमने उन बच्चों के लिए जो खाने-पीने का मेस है उसके लिए कुछ डोनर्स हैं हुँ, फैसलाबाद हुँ। में से ही
जिन्होंने हमें अप्रोच किया, और आई थिंक आई शुड नॉट मेंशन द नेम, क्योंकि एक डेफिनिटली। सदका जारिया है, तो उन्होंने अपनी खुशी से ये किया है। तो बट आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज थ्रू दिस फोरम कि उन्होंने हमें 2.7 मिलियन रुपीस जो है वो उन बच्चों के लिए वो ट्रांसफ़र किए, और कहा कि जी ये आप एक साल के इनके बच्चों के मेस के अखराजात जो है, इनको फ़ील नहीं होना चाहिए कि ये बच्चे वहाँ पे इनको कोई खाने पीने के मसाइल आ रहे हैं या कुछ चीज़ें आ रही हैं। एंड बिसाइड दिस देयर आर मैनी अदर डिज़र्विंग स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ रहे हैं। कल की बात है कि एक बच्ची मेरे पास आई, तो उसके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे, तो उसको 85% जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली हुई थी, और उसके कोई ट्रांसपोर्ट के इश्यूज थे। तो मैंने बच्ची से पूछा कि बेटा आपको फास्ट का किसने बताया? तो एक इधर एरिया है मलकपुर, और वहाँ से हुँ, वो बच्ची आती थी, तो मुझे उसने कहा कि सर मेरी एक टीचर थी, तो उसने मुझे बताया कि आपको वहाँ पे लाज़मन ट्राई करना चाहिए और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बस टीचर ने मुझे बताया, और मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, और आज मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे किसी ने अच्छा गाइड किया है। तो मेरे ख़्याल में अवेयरनेस की थोड़ा-सा है, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम मुख्तलिफ़ लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, हम विज़िट भी कर रहे हैं, टैलेंट हंटिंग भी कर रहे हैं। आवर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू अर्न मनी, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू एजुकेट द यूथ, एंड स्पेशली ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक पहुंचा जाए, और ऑफ कोर्स जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और उन्हीं की फीस से फिर हम ये सदका जारिया डेफिनिटली, जो है वो चला रहे हैं। डेफिनिटली, डेफिनिटली इम्प्रेसिव। अम, थोड़ा-सा अगेन मैं पीछे जाना चाहूँगी कि आपने इस पूरे एक एनवायरनमेंट से मुझे अभी ब्रीफ दिया दैट हाउ यूनिवर्सिटी वर्क्स और किस तरह से ये सारा काम होता है। बट एज़ अ ग्रेजुएट, फॉर इंस्टेंस मैं फ़ास्ट यूनिवर्सिटी की एक ग्रेजुएट हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद इज़ देयर एनी चांस दैट आई कैन कम बैक टू द यूनिवर्सिटी एंड अक्सर एक जो दूसरी चीज़ हम बात की जाती है जिसके बारे में कि प्राइवेट सेक्टर अ, कि जो पे स्केल्स हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से उनका वर्कलोड होता है। माय सिस्टर इज़ एक्चुअली शी इज़ लेक्चरर इन वन ऑफ द वेरी renowned प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड आई हैव सीन कि उनका वर्कलोड किस तरह से है, उनके पे स्केल्स किस तरह से काम कर रहे हैं। बट बिकॉज़ उन वो फ्रेश ग्रेजुएट हैं एंड शी नीड्स एक्सपीरियंस, वो भी एकेडमिया की तरफ जाना चाह रही हैं। तो शी इज़ बाउंड टू वर्क देयर और वो जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उस इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी कम ही प्रोवाइड की जाती हैं इन फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। एनी हाउ वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा डिफाइन किया जाता है और हो सकता है कि फास्ट के अंदर जो फैकल्टी काम कर रही है किसी ना किसी तरह से वो भी इसी चीज़ को बेयर कर रही हो। लाइक द वर्कलोड इज़ ह्यूज बिकॉज हम आई रोज देखते हैं फास्ट के अंदर ये एक्टिविटी हो रही है, वो एक्टिविटी और डेफ़िनेटली फ़ास्ट की फैकल्टी ही है जो वो पूरे बर्डन को ऑन कर रही है एंड दे आर प्रोसेसिंग एवरीथिंग। सो एज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट इफ़ आई वांट टू जॉइन फ़ास्ट यूनिवर्सिटी, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ फ़ास्ट यूनिवर्सिटी, व्हाट आर द अपॉर्च्युनिटीज़ दैट आई कैन अवेल देयर? और हम सिर्फ फैसलाबाद कैंपस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी कैंपसेस की भी बात कर रहे हैं। आमना इट्स अ चैलेंज फॉर अस एज वेल, या इन टर्म ऑफ स्पेशली जो आपने सैलरी और वर्कलोड और वो सारी चीज़ें बात की। एक तो वर्कलोड है, एक पेन है जो इंसान खुद लेता है। बिल्कुल। पैशन होता है ना, शौक होता है। जी, जी। अब हमारे पास कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनमें कुछ करने का पैशन होता है, कोई एक्टिविटीज़ करनी है, हुँ, किसी की हेल्प करनी है, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई वर्कशॉप करनी है, कोई बच्चों की एक्स्ट्रा ग्रूमिंग करनी है। इवन दे डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, और वो कहते हैं कि अच्छा सर आप मेरे ज़िम्मे लगा दें, हम ये कर लेते हैं। हुँ, एक तो वो काम का प्रेशर है, बर्डन है। एक है जेनेरिक वर्कलोड, और मतलब वो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, मीन्स नॉर्मल है, कम नहीं है। जिस तरह से कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, जी। कि फॉर एग्जांपल दे हैव टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, या कुछ प्रोजेक्ट्स लिखने होते हैं, तो वो एक मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। बट हमारी यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी के लिए वर्कलोड है वो नॉर्मल है। इट्स नॉट, यू कैन से कि हमने ओवरलोडेड किया, हुँ, और इतना काम भी नहीं है, मैं वो भी डिनाई नहीं करता।
क्योंकि कुछ एक्रीडिएशन बॉडी होती हैं जो कि आपके प्रोग्राम्स को, आपके फैकल्टी के वर्कलोड को, उनकी फैसिलिटीज़ को मॉनिटर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो विज़िट्स जो है वो रेगुलरली करवाते रहते हैं, और अभी भी जो अब हमारा ये बैच ग्रेजुएट होने जा रहा है इसका विज़िट ड्यू है, और वी आर इन कांटेक्ट विद द एक्रीडिएशन बॉडीज़। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो हमारा, जो अगर पांचों कैंपस की बात करें, तो वो हमारा प्रोग्राम जो है वो वाशिंगटन अकॉर्ड लेवल 2 की एक्रीडिशन है। इट मीन्स के हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं दे कैन गेट इजीली जॉब एंड दे डोंट नीड टू डू some other type of training or workshop in overseas. तो वो जब हमारे ऊपर एक्रीडिशन का प्रेशर होता है तो वी ट्राइड एंड वी मेंटेन द रिक्वायरमेंट जो कि हमें एक इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे मिली होती हैं। एक तो ये वो बात है। दूसरी बात है कि जो सैलरी है वो चैलेंज है, वो चैलेंज पहले नहीं था। कोविड के बाद से जब बच्चों के लिए इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटी, स्पेशली कंप्यूटिंग ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बनी, मिली, बिल्कुल। तो अब वो जो सैलरी थी, अब वो जो रिक्वायरमेंट थी वो इंक्रीज़ होगी। हुँ, अब हमारा ग्रेजुएट है तो वो नॉर्मल कंपनीज़ भी जो हैं वो मिनिमम 80,000 बच्चों को ऑफ़र कर रही हैं। और अब लास्ट टाइम हमारा जॉब फेयर हुआ है तो एक कंपनी आई है, 7th सेमेस्टर के बच्चों को 50 स्टूडेंट्स को ऑन द स्पॉट उन्होंने जो है वो ऑफ़र लेटर्स दे दी। अब बच्चों के पास ऑलरेडी ऑफ़र लेटर्स हैं, तो व्हाई हुँ, दे विल थिंक कि जी अच्छा हमें दोबारा अब यूनिवर्सिटी को एज ए इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें एचईसी की, हायर एजुकेशन कमीशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की टीचर्स को, वो भी लाइक मेंटेन करनी पोस्ट है। ग्रेजुएट। तो वो भी एक चैलेंज है कि जी आपका एमएस, एटलीस्ट एमफिल 18 ईयर एजुकेशन फैकल्टी मेंबर होगा तो वो काउंट होगा। बिल्कुल। अब अंडर हमारे पास वो उस लेवल पे काउंट भी नहीं हो रहा। और फिर पीएचडी की एक एचईसी की रिक्वायरमेंट भी है कि उसको आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीएचडीज़ को इंडक्ट करें, और रिसर्च और आर&डी कल्चर को, और उसको भी बढ़ाएं ताकि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बेहतर हो। वो एक इंटरनेशनल प्रेशर है एचईसी पे, और एचईसी डेफिनेटली पर हुँ, यूनिवर्सिटीज़ पे ट्रांसफर करती है। तो अब कहने का मकसद ये है कि वो जो यंग लॉट है, जिनको अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडस्ट्री दे रही है, इंटरनेशनल मार्केट दे रही है, तो वो जो टैलेंट है वो अब हमें एक चैलेंज बन रहा है। इवन नॉट ओनली इन आफ्टर द अंडरग्रेड, इवन जो ग्रेजुएट लेवल हैं, अब जो पीएचडीज हैं, बहुत सारी कंपनीज इस्टेब्लिश हो गई हैं जो कि टीचर्स को हायर कर रही हैं और ऑनलाइन लर्निंग पे कंटेंट क्रिएट करवा रही हैं, ऑनलाइन लर्निंग पे उनके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड येस, रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे पीएचडीज़ हैं, उनको भी उठा के, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, फॉर एग्जांपल फास्ट जो है वो किसी एक फैकल्टी मेंबर एंट्री लेवल पे 2 लाख रुपया दे रहा है, और उसके बाद कोई 1 2 4 सालों के बाद वो 2.5 लाख रुपया ले रहा है। अब उन कंपनीज़ ने क्या किया है कि उन्हीं लोगों को 3.5 4 5 लाख रुपए पे ऑफ़र किया है, और उनको अपने पास बुला के जी अच्छा अब आप हमारे ऊपर लिए कंटेंट राइटिंग करें, कोर्सेज़ डिज़ाइन करें, वीडियो लेक्चर्स हुँ, रिकॉर्ड करें, तो हम इसको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, जिस तरह कोर्सिया है इसी तरह जी, जी, उन्होंने जो है ना वो यूडेमी, पाकिस्तान और मतलब मल्टीपल इंटरनेशनल बिल्कुल। स्टेक होल्डर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब वो उन्होंने वो काम करना शुरू, एक चैलेंज वो भी आ रहा है। दूसरा मैंने अंडरग्रेड का बताया तो वो तो है ही है, बट अगेन हमारी हायर मैनेजमेंट इज़ वेल अवेयर अबाउट दिस ट्रांजिशन फ्रॉम एकेडेमिया टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, गुड रिसोर्सेज के बारे में। तो हम भी कोई डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं विद इन दिस 1 to 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर्स। आई थिंक अराउंड एवरेज जो सैलरी हमारी यूनिवर्सिटी की इंक्रीज़ हुई है वो 30% हुई है, तो जिससे थोड़ी-सी कुछ रिटेंशन हमने हुँ, बेहतर करने की कोशिश की है। सिमिलरली हमने अपने फैकल्टी मेंबर्स के लिए कुछ मज़ीद एडवांटेजेस, कुछ लेट्स से अकोमोडेशन अलाउंस की फ़ॉर्म में, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की फ़ॉर्म में हमने ऐड किया है ताकि दे फ़ील लाइक होम। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक पैशन भी होता है कुछ लोगों को, शौक भी होता है। ये दुनिया तो चेंज होती रहती है, कुछ पैसों के लिए भाग रहा है, कुछ इज़्ज़त के लिए भाग रहा है, कुछ नाम के लिए भाग रहा है। जी, तो अगेन ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, शिफ्ट आती रहती है, कुछ लोग जाएँगे, कोई नया काफ़िला हमें जॉइन करेगा।
बिल्कुल। और कुछ लोग सुकून के लिए भी करते हैं। अब इंडस्ट्री में जो प्रेशर है एक एम्प्लॉय पे, शायद वो एक टीचर पे प्रेशर नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कुड कि बी। यू हैव टू मीट द डेडलाइन्स, यू डोंट हैव एनी योर पर्सनल लाइफ, हुँ, राइट? ये भी इंडस्ट्री वालों को एक हुँ, डिफरेंट तरह का प्रेशर है कि अच्छा जी डेडलाइन आ गई है, उधर चाहे भाई की शादी है, चाहे आपकी कोई फैमिली का प्लान है, यू हैव टू जी, पोस्टपोन। बिल्कुल। इधर एकेडेमिया में एटलीस्ट ये आज़ादी ज़रूर है कि यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली, कि अब सैटरडे संडे आपको पता है कि कोई डेडलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं, आप जो भी असाइनमेंट आएगी मंडे को जमा करवानी। हुँ, एंड सिमिलरली इफ़ यू वांट टू अवेल सम वेकेशंस, आप समर वेकेशंस अवेल करें, आप जा सकते हैं। इन बिटवीन खुदा ना खास्ता आपके कोई मेडिकल रीजंस हैं या कोई और चीज़ें हैं, तो वो आपको एक अच्छा कंफर्ट जोन मिलता है, और वो मैं समझता हूँ कि शायद टीचिंग के प्रोफेशन में है। इंडस्ट्री में ये सहूलत नहीं है। आपकी डेडलाइन आ गई है, फॉर एग्जांपल योर बॉस इज़ टोटली रिलाइंग ऑन वन और टू ह्यूमन रिसोर्स, एंड उसके कोई प्रॉब्लम आ गए हैं, चाहे वो मेडिकली है, चाहे वो फैमिली है, तो उनका तो प्रोजेक्ट टोटली स्ट्रेस में चले जाएगा कंपनी, और वो डिफरेंट तरह के फिर मेजर्स अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, और उस टाइम बैकएंड पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि अच्छा यार इस प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंड ओवर किया जाए। तो वो अल्टीमेटली वो जो स्ट्रेस है, वो प्रेशर है, वो फिर एम्प्लॉय पे जो है वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अगेन इट्स योर हुँ, चॉइस हुँ, कि वट एवर यू वांट टू अवेल, आइदर यू वांट अ बैलेंस लाइफ। तो मेरे ख्याल में जो फैकल्टी है, टीचर है, उसकी एक बैलेंस लाइफ है। ऑल्दो मेरे जैसे लोगों की बैलेंस लाइफ नहीं है, क्योंकि व्हेन यू आर हेडिंग येस, समथिंग, तो अगेन यू हैव टू बी अलर्ट 24/7। सो बिल्कुल, बट अगेन एक नॉर्मल फैकल्टी मेंबर आई थिंक एक रीजनेबल लाइफ है जो कि हमें चाहिए। बिल्कुल। ऑल्दो आपने जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी, आई डू एक्सेप्ट दैट, बट एट सम पॉइंट आई डिनाई इट एज़ वेल बिकॉज़ आई हैव अ लिविंग एग्ज़ाम्पल विथ मी, और उनका एकेडेमिया में होते हुए भी ऑल्दो उनकी जॉइनिंग को जस्ट 4 मंथ्स हुए हैं, बट द प्रेशर इज़ रियल। दे डोंट हैव एनी पर्सनल लाइफ ईदर. You have to be available on Saturdays if there is any call. You have to be available on Sundays. Even their head of departments quote these things that if there is any emergency situation at university, हम अपना काम नहीं रोक सकते एक रिसोर्स की वजह से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरा ख्याल है दोनों सेक्टर्स में होती हैं। इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से ऑन कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी टू पुट योर फोन ऑन द फ्लाइट मोड एंड बी अनअवेलेबल एंड गो ऑन मंडे एंड से दैट ओके सॉरी आई वाज नॉट अवेलेबल ड्यू टू दिस। ये भी होता है, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप उस अपने डेजिग्नेशन को ऑन कैसे करते हैं। लेकिन वो आ, चंद यूनिवर्सिटीज़ में होगा जी, कि वर्क प्रेशर और बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें हैं, बट अगेन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्होंने नाम बनाया है, वो अपने एम्प्लॉइज़ को फ्रीडम देते हैं, हुँ, और इसी वजह से लोग उनको ज्वाइन करने की कोशिश भी करते हैं, और बिल्कुल। वहाँ पे सर्व करने भी के लिए कोशिश करते बिल्कुल। आप अभी ये जो सारा प्रेशर डिफ़ाइन कर रहे थे रिगार्डिंग द फैकल्टी, मुझे ये लग रहा था कि आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ इट हैं। इज़ द सेम इन इंडस्ट्री एज़ वेल। आप हमें लगता है कि एकेडमिया के अंदर अ, रिसोर्सेज़ का लैक नहीं होता, बट एज़ यू आर एक्सप्लेनिंग इट्स वेरी ट्रू कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स के पास अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत कम लोग जो हैं वो इस चीज़ को फ़ील करते हैं दैट दे हैव टू गो टू द अकेडमी, और उसके अंदर अक्सर ये चीज़ भी फ़ील की जाती है कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस, हमारा मैक्सिमम प्रमोशन कहाँ तक चला जाएगा आफ्टर आफ्टर लाइक 10 years और 15 years मैक्सिमम आई विल बी ऑन द डायरेक्टर लेवल एंड व्हाट एल्स। और वो भी बहुत सारे, सब लोग नहीं जाते, कुछ चंद लोग जाते हैं। तो हमें ये लगता था कि universities are unable to produce that quality that we need in industry. But as you are explaining, it seems like there is a gap in the education sector or in the growth of these graduates. इनके mindset को build करने में कोई gap है कि they are unable to identify what are the needs of the industries, rather than they are just behind the one motive that they have to fill their pockets. That's all. मैंने बहुत सारे graduates को at a time तीन तीन जॉब्स करते हुए भी देखा है, और एट द एंड क्या होता है, दे लैक सम एथिक्स। एक जॉब का काम दूसरी जॉब पे, दूसरी जॉब का काम तीसरी जॉब पे, तीसरी का फिर से पहली के ऊपर, और वो एट द एंड दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस एनी क्वालिटी। दिस इज समथिंग जो कि इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है एकेडेमिया से,
एकेडेमिया इस गैप को फिल करेगा, ये जो वॉइड है पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। बट आई डोंट नो व्हाट एकेडेमिया इज़ डूइंग फॉर दिस, कि उनके क्या स्टेप्स हैं, बिकॉज फॉर सम नॉन यूनिवर्सिटीज़ आई नो कि वो प्रॉपर करियर काउंसलिंग्स भी करते हैं, वो वर्कशॉप्स भी करते हैं, वो अपनी फैकल्टी भी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है विद देयर मोटिव्स, दे देयर स्टूडेंट नो कि हमें आफ्टर आफ्टर जस्ट फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर these are the possible industries that we have to join, and these are the responsibilities that we have to fulfill. And I want to mention and appreciate fast graduates, because I have worked with them. They are very respectful and they are very dedicated as well. um, this is something that we lack in almost all of other universities. But this is the one part. There are other parts as well. तो हमारे जो ये ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स या वो वर्कफोर्स जो इंडस्ट्री के अंदर ट्रांजिशन होके आ रही है, उनका मोटिव इस टाइम पे जस्ट मनी है, not to gain experience, not to work, not to polish their skills. They just want to generate money, and then again, कोई भी possible field हो सकती है. Even they don't want to follow their contracts as well. So what do you think कि ये एक जो mindset build हो रहा है, बिकॉज ये आपकी कोर्स बुक्स के अंदर नहीं है, आप कोर्स बुक्स के साथ इसको चेंज नहीं कर सकते, आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के ऊपर रख के अपने स्टूडेंट्स का ब्रेन शार्प करना है और उनका माइंड सेट करना है इसके लिए. सो हाउ आर अकेडमिया इज वर्किंग ऑन इट? एक्चुअली पहली बात तो ये है कि इसके लिए ना अगेन यू नीड स्पार्क, और वो फैकल्टी मेंबर्स की साइड से होता है। हम्म. और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं होता, जहाँ पे आप सिर्फ जॉब कर रहे हो ना, किसी भी जगह पे, नॉट ओनली इन जी यूनिवर्सिटी, जी. इवन इन एनी कॉरपोरेट सेक्टर, राइट. जहाँ पे कुछ लोग आपको मिलेंगे कि जो सिर्फ जॉब कर रहे होंगे और उनका कोई कंसर्न नहीं होगा, आएंगे जो उन्हें कह दिया वो कर लेंगे उसके अलावा। सिमिलरली इन एकेडेमिया कुछ फैकल्टी मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये स्पार्क होता है, वो एनर्जी होती है, वो बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं और उनको कुछ डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो लेगेसी ये है कि हमारे जो अलumni हैं, जो मैंने पहले भी बात की जी जी. थी, दे ऑलवेज केयर अबाउट देयर जूनियर्स। राइट. और वो फिर जब आते हैं बच्चों को विजन देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दिस दिस दिस, और मार्केट में किन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, किस चीज़ को बुरा माना जाता है। तो वो जब लेसन्स ट्रांसलेट होते हैं या डिलीवर होते हैं, हम्म. तो उससे बच्चों की बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग होती है। तो मेरे ख़्याल में आपके घर में भी अगर कोई बड़ा हो और वो जो आपको एक रीज़नेबल ट्रेनिंग दे, आपको बताए कि नहीं बेटा ये करना है, ये नहीं करना। तो इसी तरह जब अदारों में भी, एकेडेमिया में भी फैकल्टी मेंबर्स उन लोगों को, उन रिसोर्सेज को लेके आते हैं जिनका एक एक्सपोज़र होता है, जो उनको ग्रूम करते हैं, बताते हैं। और ये एक नॉर्मल सी बात है कि बाहर से जब लोग आते हैं, इंडस्ट्री से लोग आते हैं, तो वो जब उन्हें ग्रूम करते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस, उनकी चीज़ें जो है अफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू के जो टीचर एक रेगुलरली सॉरी ट्रेडिशनल टीचिंग कर रहे होते हैं, तो उससे हट के उन्हें किसी दिन बिठाया जाए हम्म. तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है। बिल्कुल. तो मेरे ख्याल में व्हाट आई वुड रिकमेंड टू ऑल इंस्टीट्यूशंस के, एक तो ये है कि अपने अलमनाई के साथ लिंक बेहतर इस्टेब्लिश करें, और दूसरा इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लें। आपने ऑलरेडी कहा कि फास्ट ऑलरेडी कर रहा है, तो मैं बिल्कुल. इसके बारे में मज़ीद कुछ और कह नहीं सकता। जस्ट एक मेरी सजेशन ही है, एक रिक्वेस्ट ही है कि हम जिस तरह से मॉडल अडॉप्ट करते हैं कि इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेके आते हैं, और फिर ऑन बोर्ड लेने का मतलब ये है कि वी सीरियसली थिंक अबाउट इट। ये नहीं कि राइट. आया, एक सेशन करवाया और उसके बाद अगर हमें वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वी आल्सो एक्सेप्ट इट, राइट. और उसको हम गौर व फ़िक्र करते हैं, हम बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं जस्ट लाइक अ फैमिली, कि अच्छा यार ये चीज़ है, इंडस्ट्री ने ये फीडबैक दी। हमें भी सम टाइम आता है इंडस्ट्री में कि ये जो है ना, एक जॉब मिलती है और उसके बाद कोई और दूसरा ऑफ़र लेटर आ जाए, तो दे जस्ट स्विच. ये दे जस्ट स्विच, और ये इनकी जो है ना, तो हम बच्चों को यही ग्रूम करते हैं और बताते हैं कि जस्ट ये देखें कि आप किसके पास काम कर रहे हैं।
उस कंपनी के बैकएंड पे कौन है और वो आपको कितना नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो राइट, आप में कितने बेहतर टेक्निकल स्किल्स दे सकते हैं। पैसे तो वक़्ती तौर पर तो चले ठीक है, आप स्टार्टिंग में हो सकता है कोई 10-15 हज़ार रुपए ज़्यादा कमा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो स्किल्स हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग एक स्किल्स एंड टूल्स एक्सपीरियंस। है, एक्सपीरियंस है जो आपको एक बंदा जो है वो बेहतर ग्रूम कर देता है, बता देता है, आपको एक बड़े ख्वाब, ड्रीम्स दिखाता है एंड कंसिडरिंग द पोटेंशियल वो आपको तराशता है, ग्रूम करता है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी होता है और यही फिर हम बच्चों को बताते हैं कि स्टार्ट में पैसों के पीछे ना भागें, बिल्कुल, देखें कि अदारा किस तरह का इवन आपको अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई इंटर्नशिप या अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो जस्ट टेक दैट अपॉर्चुनिटीज़ और फिर आपको जब एक्सपोज़र मिल जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि दुनिया में क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल में अगेन वी नीड टू कनेक्ट और उससे मेरे ख़्याल में चीज़ें थोड़ी-सी बिल्कुल सही कहा आपने एंड आई डू एक्सेप्ट कि ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमने अपनी जर्नी का जब स्टार्ट किया था मैंने जो मेरी फर्स्ट जॉब थी दैट वाज़ ऑफ 6000 रुपीज़। तो एट दैट टाइम मेरे लिए वहाँ पे जो चीज़ मैटर करती थी दैट वाज़ जस्ट द एक्सपीरियंस और मोर देन एक्सपीरियंस जस्ट अ स्टेप इन इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ सो आई कैन स्टार्ट समथिंग और आपकी फर्स्ट जॉब और उसका एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज दैट पर्सन वो बंदा आप पे उस टाइम पे ट्रस्ट कर रहा होता है जब आपके पास बिल्कुल ज़ीरो स्किल्स हैं और उन ज़ीरो स्किल्स के ऊपर वो आपको पॉलिश करते हैं आपको सब चीज़ें सिखाते हैं सो ट्रस्ट द पर्सन नॉट द मनी डेफिनेटली। आमना ऐसे बिल्कुल आपकी बात इससे मैं एग्री करता हूँ कि मैंने अपना अर्ली करियर टीचिंग का या एकेडमिक्स का कॉमसेट से स्टार्ट किया। एट दैट टाइम जो हमें एनवायरनमेंट दिया गया, जो माहौल दिया गया, मैं जब मेरी जॉब हुई तो एट दैट टाइम यूनिवर्सिटीज़ में आपकी इंडक्शन 16 ईयर एजुकेशन पे होती थी। राइट। मास्टर्स जी जी। उस टाइम जो 16 ईयर था वो मास्टर्स कंसिडर होता था। यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती थी। तो घर वालों ने बताया हुआ था कि मास्टर्स हाईएस्ट डिग्री है। हम्म। इसके बाद 16 साल तलीम 16 साल है और बिल्कुल। 16 पूरी करनी है, वो पंजाबी में जिस तरह कहते हैं ना कि 16 जी जमाता। 16 जमातें पूरी कर ली हैं और अब जो है ना नौकरी करनी है। जी। वो लेकिन जब मैंने जॉइनिंग दी तो वहाँ पे एक डिफरेंट तरह का माहौल था कि जी अच्छा जी यूनिवर्सिटी में टीचर रहने के लिए मिनिमम एमफिल क्वालिफिकेशन है और आने वाले वक्तों में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इन लोगों को निकाल देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये इस तरह का था, तो हमें जॉब सर्वाइवल का थोड़ा इशू हुआ। हम्म। फिर उसके बाद वहाँ पे पता चला कि यार फॉरेन स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं और आप बाहर भी जा सकते हैं। और मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि कुछ दोस्तों ने मोटिवेट किया। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जा सकता, मैंने तो घर में कमिटमेंट की हुई है कि सैलरी में से इतने पैसे भेजा करूँगा और मैं अगर हम्म। स्कॉलरशिप पे चला गया, यहाँ से विदाउट पे लीव पे जाऊँगा तो वो अखराजात घर के कैसे मैनेज होंगे। फिर दोस्तों ने गाइड किया नहीं इतने स्टाइपेंड मिलता है, इतने पैसे होते हैं, एयर टिकट मिलता है, वहाँ पे आपके इतने अखराजात होते हैं, फिर आपको कोई टीचिंग असिस्टेंट भी मिल जाती है। अगर वो मिल जाए तो आपका जो स्टाइपेंड है वो डबल हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर आप इवन ना भी मिले तो आप अपना जो स्कॉलरशिप है उसमें से नॉर्मल लाइफ के तहत भी रह के भी आप इतने पैसे जो है वो घर भेज सकते हैं। तो फिर सोचना शुरू कर दिया, वही अगेन बात कि माहौल और जहाँ पे आपकी जॉब हुई है, वो आपको क्या कहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करो, अपने काम से करो, शुक्र अदा करो, नौकरी मिल गई है, दिस एंड दैट। और एक है कि आपको वहाँ पे ग्रूम कर रहे हैं, आपको हम्म। ट्रेंड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। एंड लिटरली मैं ये बात करूँगा कि अगर मैं वहाँ पे ना होता, तो शायद मैं आज इस स्टेज पे ना होता। बिल्कुल। बिफोर दैट मैंने इंडस्ट्री में भी जॉइन स्टार्ट में किया। नियाग्रा टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी तो उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल था, इस सॉफ्ट सेल था। जी। तो वहाँ पे मैंने डेवलपर की जॉब जो है वो स्टार्ट की और मैंने देखा कि अच्छा भी क्या है। एंड देन आई गॉट द ऑफर और मुझे एक बहुत अच्छा जंप था और मेरा पैशन भी था टीचिंग का। तो मैंने वो छोड़ा और वहाँ पे गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आई वाज़ लकी एनफ। और अगेन कोई वालदैन की दुआ जी। और बाकी चीज़ें भी बहुत सारे अल्लाह डेफिनेटली। ताला की भी एक मदद शामिल थी उसमें। तो वहाँ पे जाने के बाद दैट वाज़ माय फर्स्ट फ्लाइट इन लाइफ जो कि मुझे स्कॉलरशिप के थ्रू मिली और आई स्टिल रिमेंबर
कि जनवरी 2008 के अंदर लाहौर एयरपोर्ट से मैं जो है वो एआईटी में गया, और फिर मैं वहाँ पे गया तो प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका मिला, और उस प्रोफेसर ने मुझे वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट ऑफर कर दी। एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग मनी फ्रॉम टू डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। सोर्सेज, और फिर वहाँ पे गया तो फिर जापान की एक अपॉर्चुनिटी आ गई। और जापान में क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन थी, एमओयू थी, फिर कुछ लोगों ने बताया कि यार ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो यूनिवर्सिटी 3 लोगों को हर साल जो है वो जापान भेजती होती थी। उनमें मेरी सिलेक्शन हो गई उन 3 कैंडिडेट्स में, और मैं जापान चला गया। वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने मुझे जाते ही उस टाइम आई थिंक इट वाज 2010, मुझे 10 लाख रुपया जो है वो मुझे स्टार्ट में एज ए एडवांस दे दिया बीइंग अ स्टूडेंट, कि अच्छा भी अब आप जापान में आ गए हैं और ये आपकी पेमेंट है, क्योंकि आप आए हैं तो आपने सेटल हुँ, डाउन होना है यहाँ पे। आपने कोई फ्लैट रेंट पे लेना होगा, आपने ट्रैवलिंग करनी होगी, फिर कुछ टिकट्स की रीइंबर्समेंट थी वो उन्होंने मेरी की। तो उस टाइम तो अब आज से 12 साल पहले आप 10 लाख रुपए का हिसाब लगाएं, वो शायद आज का 30 लाख रुपया या 40 बिल्कुल। लाख रुपया बनता होगा। आज भी वो प्रोग्राम तो चल रहा है, वही जी। एक्सचेंज स्टूडेंट वाला, और आई स्टिल कैन इमेजिन कि वो बच्चे जा रहे होंगे। तो ये सारी वो प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो कि एक इंस्टीट्यूट में गया, मैं वहाँ जंप किया, और फिर वहाँ से फिर मैं दूसरे गया। फिर अगेन आई एम थैंकफुल टू माय सुपरवाइज़र कि उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, यू कैन डू दिस, यू शुड अप्लाई दिस, एंड डेफ़िनिटली। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ से जापान, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन मिडल ईस्ट, अमेरिका। मैं अमेरिका में जो गया तो वो मैं मुझे नासा की तरफ से एक फंडिंग मिली, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, और बीइंग अ स्टूडेंट, और ये सारा जो मैंने इंटरनेशनली ट्रैवल किया, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, जापान का, ये बीइंग अ स्टूडेंट मैंने सारी ट्रैवलिंग की, और सारी स्पॉन्सर्ड ट्रैवलिंग। तो राइट। मेरे ख्याल में माहौल का और वो बहुत इम्पेक्ट आता है। तो डेफ़िनिटली। सिमिलरली व्हाट वी वर टॉकिंग के आपको ये देखना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए कि ये अदारा, ये लोग जिनके साथ मुझे हुँ, काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो कैसे हैं? वो सिर्फ़ अपना सोचते हैं या लोगों की लाइफ़ बनाते हैं? बिल्कुल। अगर वो लोगों की लाइफ़ बनाते हैं, तो देन आई थिंक यू शुड वेट फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन द रिजल्ट्स विल बी देयर। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। आई आई रियली होप कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो कि हमारी फ्यूचर वर्कफ़ोर्स बनने वाली है, दे टेक दैट लेसन एंड दे वर्क ऑन इट, दे फोकस ऑन इट, बिकॉज़ इंडस्ट्री को इन लोगों की ज़रूरत है, बट इंडस्ट्री को लोगों से ज़्यादा उनकी लॉयल्टी की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर लॉयल्टी नहीं है, देखिए स्किल्स वो चीज़ है जो आप किसी को भी सिखा सकते हैं। इवन आप मैट्रिक पास बंदे को सिखा सकते हैं, हमें ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। हम ग्रेजुएट्स और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज उनमें एथिक्स और उनमें प्रोफेशनल बिहेवियर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारी वर्क प्लेस के ऊपर लेके आएंगे। और उन एथिक्स के अंदर एक चीज़ ये होती है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होना है। उसमें मैं एक चीज़ हमेशा बात करती हूँ कि जो आप कमा रहे हैं, उस कमाने को हलाल करके ज़रूर कमाएँ और उसको हलाल करके ज़रूर खाएँ। अगर आप अपने काम के अंदर लॉयल नहीं हैं, तो वो आपकी जो कमाई है, वो एट सम पॉइंट वो हलाल नहीं है आपके लिए। बहुत सारी डेफिनेशंस लोगों की हो सकती हैं, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई थिंक। और लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत आगे तक ले जाती है। बहुत, जैसे अभी आपने एक एग्ज़ाम आप अपना पूरी करियर जर्नी बता रहे थे, तो आई एम 110% श्योर कि अगर आपके प्रोफेसर्स और सुपरवाइज़र्स आपको नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं, तो आपने भी फॉर श्योर उनके लिए उतनी ही 110% लॉयल्टी के साथ काम किया और अपने काम के अंदर सिंसियरिटी दिखाई है, एक्स्ट्रा माइल्स के ऊपर जाके रिजल्ट्स को डिलीवर किया है, एंड दे वर सो लॉयल टू यू कि उन्होंने आपको नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटीज़ और आपके करियर को पूरे करियर को बनाया है, आई वुड से दैट। आमना, मैं अगर इस कैंपस की बात करूँ, आई जॉइन्ड दिस कैंपस इन जनवरी 2014, and it's on record and everybody will listen this दिस thing. फास्ट फैसलाबाद Fast कैंपस। Faisalabad campus, and I'm again repeating that this is on record, and I the session is being recorded डेफिनेटली। in January 2014 in Fast Faisalabad campus. Nobody knows me from
एडमिन टू फैकल्टी, राइट। राइट? सो मुझे मैनेजर एडमिन का नहीं पता था कौन है, हुँ, मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नहीं पता था कौन है, मुझे गेट पे जो सिक्योरिटी है उनका नहीं पता था कौन है, बिल्कुल। हॉस्टल में कौन देख रहा है, क्या लोग हैं, ठीक है? इवन मुझे डायरेक्टर कैंपस का नहीं पता था कि कौन है। सिर्फ़ एक फैकल्टी मेंबर थे जिनको मैं जानता था, और वो भी किसी के रेफ़रेंस से कि भई ये वहाँ पे जो है ना कैंपस बना है और फ़ास्ट ने एस्टेब्लिश किया है, और जस्ट आई वेंट देयर टू मीट विद माय फ्रेंड। मैं एक फ्रेंड के साथ उनको मिलने गया था। हुँ, उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ जस्ट, एंड देन आई रिसीव्ड अ कॉल कि जी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप अपनी अगर सीवी भेजना चाहते हैं तो भेज दें। मैंने भेजी तो आई वाज़ वेटिंग आउटसाइड डायरेक्टर ऑफिस एंड सिटिंग ऑन द बेंच, और मुझे कोई बंदा नहीं जानता। बिल्कुल। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि अच्छा जी अब मुझे बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, डिस्कशन होगी, सैलरी पे बात होगी, क्या होगा। एंड आफ्टर 4 year I took the charge as a head of department, right? राइट। एंड आफ्टर 6 year मुझे 2020 में चार्ज मिला, और इस 6 year में आई स्पेंड 3.5 year इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो आप अगर बाकी टाइम स्पैम देखें तो इट्स ओनली 3 to 4 years। हुँ, एक शख्स जो 4 साल की मुद्दत में कैंपस के बाहर, ऑफिस के बाहर आप कह लें, बेंच पे बैठा है, वेट कर रहा है, और आफ्टर स्पेंडिंग 4 year नो ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दैट कैंपस। और उस टाइम मुझे अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट ऑफिस में मैं जा रहा हूँ, और सर काइंडली ये मेरा अकाउंट, जी, मेरी जॉब हो गई है, तो मैंने अकाउंट कैसे ओपन करना है, एंड दे आर गाइडिंग मी, आप ये फॉर्म ले लें और आप वहाँ चले जाएं, बैंक वहाँ पे हमारी ब्रांच, उस बैंक में जाके आप ये लेटर ले जाएं और वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर लें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, और बिल्कुल। अगेन इट्स बिकॉज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट और उनकी गाइडेंस और उनकी सपोर्ट से। एंड योर वर्क एथिक्स और एज़ वेल। फिर उसके बाद आज अब बैंक्स जो हैं वो खुद आते हैं, कोई भी चीज़ है वो डिलीवर करने के लिए। ऑल्दो आपको पता है कि आजकल बैंक्स में जो है वो अब कोई चीज़ लेने जानी तो पर्सन को इन पर्सन यस, जाके वहाँ पे जाना पड़ता है, साइन करने पड़ते हैं। वो अपना पूरा रजिस्टर उठा के वहाँ ले आते हैं, बिल्कुल, बायोमेट्रिक मशीन्स वहाँ लेके चले जाते हैं, और बिल्कुल। सारी चीज़ें हो रही है। तो इट्स जस्ट विद इन 4 years। तो अगेन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एज वेल। यस, आपने साबित करना है, आपने काम करना है, आपने लॉयल्टी की जो आपने बात की थी, यू हैव टू बी लॉयल। बाहर से तो लगता है कि अच्छा यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है और क्या हुँ, हो रहा है, बट अगेन विदाउट योर हार्ड वर्क, विदाउट योर डेडिकेशन, विदाउट योर लॉयल्टी, नथिंग इज पॉसिबल। ये एक पहला फैक्टर है। अगर आपने वारन का कोट सुना हो कि व्हेन यू हायर अ पर्सन लुक फॉर थ्री थिंग्स: हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंस एंड इंटेग्रिटी, एंड इफ यू डोंट फाइंड द लास्ट वन, डोंट बॉदर फॉर द फर्स्ट टू। डेफ़िनिटली, अगर एक बंदे में इंटेग्रिटी नहीं है तो उसकी इंटेलिजेंस की, उसकी हार्ड वर्किंग को आपने क्या करना है? डेफ़िनिटली, एक बंदा जो है, मैं अक्सर ये अपने टीचर से भी कहता होता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, एंड इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, आपकी उस इंटेलिजेंस का क्या हमने करना है? वो किसी उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, डेफ़िनिटली, ठीक है? तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं एंड यू आर डिलिवरिंग एंड यू आर अवेलेबल, देन योर इंटेलिजेंस हैज़ अ वैल्यू। definitely, exactly, and this is such an important lesson. I just want this to be, printed and highlighted in every office and in each HR office that this is very important. और अगर हमारी वर्कफोर्स जस्ट ये इस डिसिप्लिन को सीख लेती है तो हो सकता है कि पाकिस्तान की हर कॉर्पोरेट सेक्टर और हर इंडस्ट्री के अंदर जो जिन जिन पॉइंट्स पे हम लैग कर रहे हैं हो सकता है कि वो 40 to 45% वो चीज़ें कवर अप हो जाएं, because this is the main pain point of every organization. I took lots of time from yours. I just want to talk on one more thing. That's the one last thing from my side. Um, 2021 से onwards एक ऑनलाइन कोर्सेज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था हमारे पास,
और बहुत सारे लोग और बहुत सारी हमारी जनरेशन के लोग और दूसरे लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, आई एम सॉरी इफ इट्स गोइंग टू बी हार्श, दैट इज़ मंजन सेलर्स। बिकॉज़ लोग स्किल सीखते हैं, कोर्स रिकॉर्ड करते हैं, दे डोंट नो कि इस कोर्स की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या सीखने वाले हैं, ये क्या चीज़ है, ये दे जस्ट वांट टू टीच इट। और एक एक लहर आई थी पूरी, अभी भी है, कि जस्ट स्किल्स के ऊपर फोकस करें, यू डोंट नीड डिग्री, यू डोंट नीड टू गो टू यूनिवर्सिटी। आप सेमेस्टर्स के ऊपर 4-4 5-5 लाख अपनी डिग्रीज के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। दे लिटरली यूज द वर्ड ऑफ वेस्ट, वेस्ट कर रहे हैं। आज़ाद चाय वाला, किन कौन नहीं जानता उनको, आज़ाद चाय वाला का सिर्फ एक ही मसला है कि यूट्यूब इज़ योर यूनिवर्सिटी एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम देयर। मैं डेफिनेटली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ और मैं इस चीज़ को ऑन भी करती हूँ कि यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीखते हैं, बट यूट्यूब को आप एक तालीमी इदारे के मुकाबले में ला के खड़ा नहीं कर सकते। एक तालीमी इदारे की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि ग्रेजुएट्स के अंदर या अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो वो ट्रांसफ़र करते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे तालीमी इदारे ऐसे हैं जो कि इन वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करने में लैग करते हैं। बट व्हाट इज़ योर थॉट्स ऑन दिस, कि डिग्री ज़रूरी है या स्किल्स ज़रूरी? अ, देखें, डिग्री जो है इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, यस, राइट? बिल्कुल, अब देखें, एक बच्चा उठता है सुबह, वो प्रिपेयर होता है, राइट? बिल्कुल। ड्रेसअप होता है, जी, जी। सो उसको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने का मौका मिलता है। जी, फिर उसके बाद लेट्स सी वो कोई बस लेता है, वैन लेता है, यूनिवर्सिटी जाता है। जी, सो उसको पता चलता है कि दुनिया के मसाइल, एक्चुअल रियलिटी में प्रॉब्लम्स क्या हैं। बिल्कुल, उसको पेट्रोल की प्राइस का अंदाज़ा भी होता है, उसको धुएँ का, स्मोक का भी अंदाज़ा होता है, पोल्यूशन का अंदाज़ा होता है, उसको लोगों की पेन का अंदाज़ा होता है, राइट? बिल्कुल, सो ये एक पूरा प्रोसेस है। मशहूर कहावत भी है कि ज़माना उस्ताद है। बिल्कुल, तो वो क्या है ज़माना उस्ताद? कि दे आल्सो प्रोवाइड यू द अपॉर्च्युनिटी टू लर्न समथिंग। बिल्कुल। तो कंप्यूटर तो ज़माना नहीं है ना। आप एक जगह पे बैठे हैं इनफॉर्मली, आप उस तरह से प्रिपेयर नहीं हो रहे। फिर जब आप यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में किसी जगह पे भी जाते हैं, तो यू हैव द अपॉर्च्युनिटी टू टॉक विद ईच अदर। उसमें नाराज़गियाँ भी होती हैं, लोगों के लहजे का आपको अंदाज़ा होता है बिल्कुल, कि किससे कैसे बात करनी है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है, बड़ों की तमीज़ का एलिमेंट आता है। एक पूरा लर्निंग प्रोसेस है। बिल्कुल, तो ये यूनिवर्सिटीज़ में शेयरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉस्टल लाइफ़ का एक अपना एक लिविंग स्टाइल है। वो आपको ये सिखाता है कि घर से दूर रहना है, तो कैसे रहना है, फिर जिन लोगों के साथ रहना है, किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, उनके साथ कैसे बर्दाश्त करना है आपने। कोई बिल्कुल। लाइट चला के सोना चाहता है, कोई लाइट ऑफ करके सोना चाहता है, तो उसको कैसे आपने अडॉप्ट करना है। तो ये पेशेंस कैसे एक लानी है? पूरा साइकिल है जो यूनिवर्सिटी बच्चे को ग्रूम करती है, इकट्ठे रहने से, शेयरिंग से, बातचीत करने से, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो सिखाती है। अ, एक बड़ी मैं कॉमन सी बात करता हूँ कि हमेशा हम लेट उस वक़्त होते हैं जब हमारी पर्सनल गाड़ी हो, कार खड़ी है। बिल्कुल। अगर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना हो तो मैं कभी भी लेट नहीं होगा। ट्रेन का पता है मुझे कि लेट्स सी 4:30 पे निकलनी है, तो मैं 4:20 पे रेलवे स्टेशन पे हूँगा। बिल्कुल। लेकिन जब मुझे पता है कि अच्छा अपनी गाड़ी खड़ी है, तो मैं हमेशा लेट हूँगा कि अच्छा 10 मिनट बाद ही हुँ। चले जाएँगे, खैर है। तो सिमिलरली वो टाइम मैनेजमेंट है, क्लास के एक पूरा स्केड्यूल चल रहा है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ एक पर्सनैलिटी जी, ग्रूमिंग की। बिल्कुल, तो आप एक चेक करके देख लें, एक बच्चा आप यूट्यूब के सामने बैठा दें, उसको यूट्यूब के सामने ग्रूम करें, राइट? बेशक बिल्कुल, बहुत अच्छा वो शायद माइंडसेट तो बहुत बेहतर बन जाएगा इन टर्म ऑफ लर्निंग, नॉट इन टर्म ऑफ जो आपने पहले बात की है कि इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है, एथिक्स के इश्यूज़, जी, बिल्कुल, इंटेग्रिटी के इश्यूज़, बिल्कुल, लॉयल्टी के इश्यूज़। वो शायद वो उसको वहाँ से नहीं पता चलेगा एक ऑनलाइन बिल्कुल, लर्निंग बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल, से। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक पूरे प्रोसेस के तहत जो है वो आ रही है। तो फिर स्किल डेवलपमेंट ऑफ़ कोर्स, विदाउट स्किल्स तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जी, आपका स्किल इज़ कंपल्सरी टूल्स जिसकी मदद से आपने आगे मार्केट में अपने आप को साबित करना है, प्रूव करना है कि
you have the command on these things and you can do something. वो डेफिनिटली। सेकंड थिंग है, लेकिन अगेन इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स। स्किल ओनली इज नथिंग, बिकॉज जब तक आपको मोरल एथिक्स और सोशल वैल्यूज नॉर्म्स उनका नहीं पता चलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो बिल्कुल। बोथ आर द इम्पोर्टेंट थिंग। उनमें से कोई एक एलिमेंट मिसिंग है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। आप बहुत ओबीडेंट भी हैं, आपको सारी चीज़ों का पता है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, अगेन इट्स यूज़लेस। डेफिनिटली। बट एंड यू हैव ओनली स्किल्स, और आपका एक अपना एटीट्यूड है, एक आपका अपना रवैया है, आप लोगों को देखना नहीं चाहते, आप लोगों से बात नहीं करना चाहते, तो जी। नोबडी विल लाइक टू अडॉप्ट यू। तो दोनों बैलेंस लेके चलना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी बट इसी एक थ्योरी को लेके कि स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, डिग्रीज आर नॉट, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया, दैट इज़ इंक्यूबेशन सेंटर्स। जस्ट इसी एक थ्योरी को लेके कि हमें एथिक्स को भी सिखाना है और हर इस चीज़ को सिखाना है, तो आप एज अ स्टूडेंट आप प्रॉपर इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाते हैं, आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप वहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स को सीख रहे हैं, बट those incubation centers are really a replacement of degrees and universities or not? देखिए, इनक्यूबेशन सेंटर्स तो एक प्लेटफॉर्म है ना, जो कि आपको फॉर स्पेसिफिक टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम आपको ग्रूम कर रहा है। ये इसी तरह ही है जिस तरह एक माँ है, एक छोटा बच्चा है, उसको इनक्यूबेट करती है, जी, ठीक है? उसको पाँव पे चलना सिखा देती है, उसको खाना सिखा देती है, बिल्कुल। ठीक है ना? अगर देखें तो एक जो आपकी मदर है, जी, वो बिल्कुल, इनक्यूबेट कर रही है ना एक बच्चे को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो अगर आप कहें कि नहीं बेटा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको चलना भी सिखा रही हूँ, मैं आपको खाना भी खिला दिया, आपको बोलना भी सिखा दिया है। तो वो एक मदर बेसिकली एक बच्चे को इनक्यूबेट कर रही है एक फॉर स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट व्हाट डू यू थिंक कि उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है? डेफिनिटली अगर ये नहीं। एक प्रोसेस जो इनक्यूबेशन का 2-3 साल का है, तो उसके बाद माँ ये समझती है कि नहीं अब मेरा बेटा जो है वो पाँव पे खड़ा भी हो सकता है, चल भी सकता है, बोल भी सकता है, खा भी सकता है, बात भी कर सकता है। सो दैट्स एनफ। तो ठीक है, फिर इसका मतलब है कि इनक्यूबेशन सेंटर इज़ सफिशिएंट एंड दे कैन रिप्लेस द रिक्वायरमेंट। बट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेसिकली नॉलेज क्रिएट करना सिखाती हैं, नॉलेज जनरेट करना सिखाती हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र करना नहीं सिखाती। बिल्कुल। ठीक है? तो नॉलेज जनरेशन इज़ द मेन एलिमेंट, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सम नॉलेज डू समथिंग, दैट इज़ राइट। टोटली डिफरेंट। वो तो नॉलेज ट्रांसफ़र हो गया। To generate knowledge, to produce knowledge is the responsibilities of the universities. अदरवाइज तो बुक्स पढ़ी हैं, आप नॉलेज पढ़ लें, ले लें, लाइब्रेरी में बैठ जाएं, वीडियोस देख लें, तो वो नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है। हुँ, लेकिन इनोवेशन करना, नॉलेज जनरेट करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। और हम नॉर्मली अपने बच्चों को यही कहते हैं कि यू आर हेयर टू जनरेट न्यू नॉलेज, टू प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। और उस नॉलेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए, यू मस्ट हैव अ सफिशिएंट स्किल सेट, राइट? बिल्कुल, और वो जो स्किल सेट है वो आपको एक प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ स्टार्टिंग पॉइंट थ्योरी से लेकर उसको बच्चे को सोचने पे मजबूर करे कि वाई दिस इनिशिएटेड, वाई आई नीड टू दिस, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये ट्रांजिशन कैसे आई, और बिल्कुल, फेजेस में चेंजेस कैसे आई, कैसे ये सिलसिला चलता रहा। तो वो यूनिवर्सिटीज़ एक पूरा साइकिल से गुजारती हैं। प्री रेक्विजिट्स का कंसेप्ट है, अर्ली नॉलेज है, मतलब बेसिक कोर्सेज है, फिर एडवांस कोर्सेज हैं। मुझे तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मुझे बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे इंडस्ट्री में से, दे ऑलवेज कम एंड दे से वी आर नॉट लुकिंग फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजीज, वी आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट्स दोज हैव बेसिक नॉलेज एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द लैंग्वेज टूल्स एंड स्किल्स। यस, हम कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं देख रहे कि अच्छा अभी इसको आज, और आप देखें, मैं अपनी बात, मैं आपको बताया कि 99 में मैंने जब कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया उस टाइम तो एंड्रॉयड था ही नहीं, बिल्कुल। राइट? लेकिन उस टाइम नोकिया अवेलेबल था हुँ, और सिंपल फ़ोन थे, एरिक्सन के सेट, पाकटेल, और एरिक्सन एक बहुत बड़ा समझा जाता था, लोग हाथों में पकड़ के चलते थे कि इसके पास पाकटेल का सेट है और टेलीफोन बिल्कुल,
है, उसकी रोमिंग पे वो कॉल्स हो रही हैं। तो किधर गया नोकिया, किधर गया पाक्टेल, रिक्सन, इनके सेट्स जो इन्होंने पूरी एक मोनोपोली थी, एक पूरा एक दुनिया पे राज था। बिल्कुल, लेकिन फिर इन्हीं लोगों ने इनोवेट किया, नॉलेज क्रिएट किया उन्हीं लोगों ने, और उसके बाद पूरी दुनिया चेंज हो गई। आपकी कितनी चीज़ें सिर्फ़ एक सेल फ़ोन ने ले लीं, क्लॉक से लेकर, आपके अलार्म से लेकर, बिल्कुल। आपकी डायरीज़ से लेकर। तो ये बेसिकली नॉलेज जनरेशन हुई, और उन्हीं लोगों ने जिनके पास बेस बेस स्किल्स पे ग्रिप बेस थी। स्किल्स थे, बेसिक थ्योरीज़ थी। राइट, थ्योरीज़ तो वही हैं, डिजिटल सिग्नल्स राइट, भी वही बिल्कुल, हैं, 0-1 भी वही है, इफ एल्स भी वही है, बिल्कुल, ठीक है? ग्राफ के जो कंसेप्ट्स हैं कि किस तरह पिक्सेल्स आपके मूव कर रहे हैं, एक्स वाई कंसेप्ट हैं, सारी चीज़ें वही हैं। बिल्कुल। जस्ट उस नॉलेज को यूज़ करते हुए न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू इनोवेशंस की गई हैं। तो इनक्यूबेशन तो बेसिकली ये है कि जिन बच्चों में एनर्जी है, पोटेंशियल्स है, उनको बताया जाए कि हाउ दे कैन टारगेट रेलेवेंट मार्केट, राइट? यस, कि उनमें अब वो कैपेसिटी नहीं है कि अच्छा दे हैव अ माइंडसेट, दे हैव द टेक्निकल स्किल्स, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं सो दैट दे कैन एक्सेल, दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स। बच्चों के पास ड्रीम है, बच्चों के पास स्किल सेट है, बच्चों के पास नॉलेज है, उनको इनक्यूबेट किया जाए, उनकी ट्रेनिंग दी जाए, और ताकि वो जो है अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। तो वो एक छोटा सा लाइफ साइकिल है बिल्कुल। जिसमें अगेन दैट इज़ आल्सो नेसेसरी, वो होने चाहिए, मैं बिल्कुल उनके हक में बट हूँ। अलोंग विद यूनिवर्सिटीज़। अलोंग विद द यूनिवर्सिटीज़, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, सॉरी, जो इनक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, अगेन उनकी ब्रीड, उनका सीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ है। बिल्कुल, और आप वो स्टार्टअप्स भी देख के आज देख लें कि जितने स्टार्टअप्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने चलाए हैं, बनाए हैं, दे आर सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। और उसके अलावा अगर एक बंदा जो बाहर से उठा है, आया है, उसके माइंड में आया है, तो वो शायद अगेन विल रिलाई ऑन द पीपल दोज हैव सफिशिएंट स्किल सेट। बिल्कुल। और अदरवाइज वो अब देखें ना, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आई है, यस, लास्ट टाइम एक डिस्कशन चल रही थी और वहाँ पे ये बात हो रही थी कि देखें पहले तो लैंडलॉर्ड थे, ज़मीनें थी और जागीरदाराना निज़ाम था। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री में पैसा है, उन लैंडलॉर्ड ने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग की, मशीन्स बनाई, टेक्सटाइल्स। उसके बाद अब जो है फोर्थ जनरेशन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, अब टेक्नोलॉजी आ गया है, अब वो बाबे कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। अब वो फ़ोन भी चलाना है, कोई चीज़ भी करना, बेटा ये ज़रा मेरा चला के दिखाना, करना। वो लड़कों से पूछते हैं, यंग जनरेशन से पूछते हैं, यार ये क्या है? कैसे है? राइट? नो दे आर रिलाइंग, क्योंकि अब उनके हाथ में नहीं, पहले वो सारा कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। अब उनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकल गई हैं। दैट्स व्हाई अब जो यंग जनरेशन है, और जिनके पास स्किल सेट है, नॉलेज है, ठीक है, बाकी देखें हम, कुछ आउटलायर्स भी हैं, कुछ आपका अगर टिकटॉकर है वो कुछ 2-4 वीडियो से पॉपुलर हो जाता है, बट नॉट ऑल द यस। टिकटॉकर्स, नॉट द मेजॉरिटी। आपका कोई एक आधा सिंगर जो है, आई वुड नॉट नेम इट, तो वो जी, अगर मिलियन लाइक्स हो जाते हैं तो इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ देयर टैलेंट, it's just due to some other factors, or बिकॉज़ uh, ऑडियंस वाज़ इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ कंटेंट और एक ह्यूमन नेचर है कि जब एक अलग चीज़ नज़र आती है, तो वो 1 से 2 दिन के लिए सबकी अटेंशन को ग्रैब करता है। तो वो 1 से 2 दिन के अंदर 1 से 2 दिन की फेम इज़ नॉट अ फेम। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अच्छा कौन सा फील्ड बेहतर है। मैं तो कहता हूँ कि आप पैशन के साथ कोई भी काम करें ना, डेफ़िनिटली। चाहे आपने गिटार बजाना है ना, जी, अगर आपने पैशन के साथ बजाया है तो पूरी दुनिया आपको सुनने के लिए आएगी। बिल्कुल, ठीक है? और आप अगर, आपको तिलावत का शौक है और आप अगर पैशन से तिलावत करते हैं, दूर-दूर से दुनिया आपको सुनने के लिए, आपकी वीडियो देखेगी, आपको लाइव मिलना चाहेगी,
बड़े बड़े रिनाउंड लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे बिल्कुल। बिकॉज आपने वो पैशन के साथ वो काम किया और उस फील्ड को चूज़ किया। हाँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो फिर डेफिनेटली एट द मोमेंट कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो कंप्यूटिंग डोमेन्स हैं, इनमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जी। उसमें ये है कि आपने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की है गिटार में, तो देन यू विल बी सक्सेसफुल। इन फील्ड्स में ये है कि अगर आप एवरेज भी हैं तो एट लीस्ट यू यू कैन हैव सर्वाइव, अपॉर्च्युनिटीज, यू यस। हैव फ्यू अपॉर्चुनिटीज। उसमें अगर आप गिटार बजाने में एवरेज हैं तो फिर शायद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप हम्म। तिलावत करने में एवरेज हैं तो फिर शायद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप अगर एवरेज भी हैं तो एट लीस्ट यू कैन सर्वाइव और आप अपनी फैमिली के लिए एक रीज़नेबल अर्निंग कर सकते। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड दिस इज माय वेरी लास्ट क्वेश्चन, और वी लाइक गोइंग फॉरवर्ड टू अ कंक्लूजन एज वेल. You are from an education industry, and you are definitely a father as well. So what do you think, that what is the future of education industry in Pakistan? Are we heading toward uh, uh, an industry जो कि एक्चुअली में पेन लेगा और हमारी फ्यूचर वर्कफोर्स को ग्रूम करेंगे प्रोफेशनली, फ्रॉम स्किल्स, एथिकली, हर पर्सपेक्टिव से? या फिर हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री जो है दैट इज़ going to be focused solely on skills, because STEM is already in discussion. बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो इस पैटर्न को फॉलो कर चुके हैं। कुछ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि होम स्कूलिंग के ऊपर फोकस करते हैं। बट यू आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर पास्ट लाइक मैनी ईयर्स, एंड definitely you can predict what could be the future of this industry in the next decade. I think future is bright. I am very positive Okay, and very it's hopeful. a relief for us. I am really very positive in this regard. ये एक वेव होती है और अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इम्तहानात हैं। जी। At the moment, unfortunately, we are in very critical and very serious situation. लेकिन हर बंदा अपनी कैपेसिटी में कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड डिफरेंट वेज कि अच्छा भाई व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड, Kind of और experiments. काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अ, ऐसी कौम, ऐसे लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जी। अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। देखें, मैं अपने स्टूडेंट से भी एक अक्सर ये बात करता हूँ। आप मोटरवे से इन होते हैं, इस्लामाबाद आपने ट्रैवल करना है, 4 घंटे के बाद आपकी डेस्टिनेशन आ जाती है। व्हाट यू जी। लर्न? यू डिड नॉट लर्न एनीथिंग। आपको पता है कि अच्छा यहाँ से इन हुए और एंड पे इस्लामाबाद लिखा हुआ आएगा और एग्जिट हो जाएगा। इफ़ यू गो वाया जीटी रोड फ्रॉम लाहौर टू Islamabad, इस्लामाबाद। or from Faisal, especially from Faisalabad to जी। Islamabad, then you will see a lot of challenges, a lot of life, a lot of pain, and lot of learning. कि अच्छा भाई वहाँ पे गए थे, कल्चर ऐसा था, खाना ऐसा था, चाय ऐसी थी, वो रोड तो बिल्कुल ही ख़राब थी, लोग कैसे सर्वाइव कर लोग रहे हैं? कैसे सर्वाइव कर रहे थे, पेट्रोल ख़त्म हो गया, हुँ। पेट्रोल स्टेशन पंप ही नहीं नज़र आ रहा था। फिर हमने क्या किया, गाड़ी ख़राब हो गई, टायर पंचर हो गया। तो दैट एक्सपीरियंस गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू थिंक, टू इनोवेट। राइट। सो सिमिलरली ये जो आजकल पाकिस्तान में इंडस्ट्री और एकेडेमिया पे जो इम्तिहान चल रहा है, बल्कि नेशन पे पूरा इम्तिहान चल रहा है, नॉट ओनली ऑन दीज टू इंस्टीट्यूशन, बल्कि पूरी नेशन इज स्ट्रगलिंग राइट। एंड थिंकिंग व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज वी नीड टू अडॉप्ट। तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उनके सामने आते हैं। तो आई थिंक इट सच टाइप ऑफ थिंग्स विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस, और आफ्टर फ्यू months or year you will see we will have a lot of progress in every domain and in every field. इवन कुछ लोग ये कहते हैं ना, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं। जी। मैं समझता हूँ कि दिस इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर अस। व्हेन these people will go, they will bring different type of opportunities for
their people. फॉर Definitely. एग्जांपल हायर एजुकेशन कमीशन का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि उन्होंने बाहर लोगों को पीएचडीज करने के लिए भेजा स्कॉलरशिप के लिए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये क्या बात है, ये तो अनसक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया है कि लोग बाहर गए हैं और वापस भी उनमें से चंद लोग आए हैं, 20%, 30% या 50%। लेट्स 50% तो वापस ही नहीं आए जी। पाकिस्तान ने जो इन्होंने कहा था कि जी नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो किधर गए लोग? बट आज वो लोग जो नहीं आए वहाँ पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे आज जर्मनी में कनेक्ट करना होना है, मुझे स्वीडन में होना है, यूके में होना है, यूएस में होना है, तो मुझे पता है कि वो हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स थे, उनमें कौन-कौन उन कंट्रीज़ में बैठा है। तो अगर मुझे कोई जॉइंट प्रोजेक्ट करना है, जॉइंट रिसर्च करनी है, मैंने यहाँ से कुछ लोगों को उस जर्मनी की यूनिवर्सिटी में भेजना है, वी हैव कनेक्शंस। Definitely. सो ये भी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है सर्कल ब्रॉड होता जा रहा है कि हमारा। आप लोग जो आज परेशान हो कि फॉर एग्जांपल मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, दे विल आल्सो क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर सिबलिंग्स, फॉर देयर फ्रेंड्स, फॉर देयर जूनियर्स। ये Right. भी एक ब्लेसिंग है। बाज़ का हमें ये लग रहा होता है कि मुल्क में पता नहीं क्या हो रहा है, बट आई थिंक फ्यूचर इज़ ब्राइट। Hopefully. Thank you very much for your time and your journey as definitely is an example, and you are a role model for most of your students who are in your university. And the one thing and the one lesson that I picked from it is that you really need to tell people that you have to be loyal and honest with your life and with your motives. If you are loyal and if you are ऑनेस्ट, तो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत खुद ब खुद ही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में है वो पर्सनल लाइफ में भी डेफिनेटली आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अगेन। Thank you very much. Ji. Thank you giving me the opportunity to talk and discuss, and especially about myself, about my institution. And it was a really honor to be here. And again, I will say and I will conclude, there are a lot of opportunities. You just need to explore and be patient. And uh, there are a lot of things which are waiting for you. Thank you very डेफिनेटली। much. थैंक यू। Okay. थैंक यू।